Hello everyone. Today I am going to discuss about preparation of haloalkanes and haloarenes, as I have already told in the previous video. I'll try to mention one or two concept maps which will make your remembering and learning better. One suggestion from my end, whenever you are revising concepts at home, do make concept maps of your own to make the recapitulation better. Do follow my channel for more shorts and reels which I'm going to upload very shortly, which will help you to remember the concepts. You are seeing the concepts, reading at home, but how to remember them, how to retain them, that's the trick. So please wait, it will be uploaded shortly. Please like, subscribe and keep following. So let us start our first discussion. Preparation of haloalkanes. Haloalkanes are Rx. They are Rx because there are two topics which we are going to discuss. One is haloalkane, the other is haloarene. So haloalkanes can be prepared from alcohols. Alcohols are the categories having OH linkage. So I have written ROH. From hydrocarbon by two starting compounds, from alkanes by the method of free radical halogenation, because alkanes are saturated compound. So what can happen is free radical halogenation, which is under the category substitution reaction. So it is actually free radical halogenation, which is an example of substitution reaction. We substitute one H of alkane by halogen by a free radical mechanism. We will discuss each topic in details in the next part. Alkenes, from alkenes, alkene means unsaturated hydrocarbon. So from unsaturated hydrocarbon by HX addition, that means hydrohalogenation reaction, addition of hydrogen and halogen. So by HX addition we can obtain alkyl halide, or maybe by the addition of X2 over alkenes. So it is plain halogenation reaction. This two, that means from alkenes by giving HX or by giving X2, example is bromine in CCl4. These two are addition reactions. So two types of reactions we can see. One is substitution that occurs in saturated starting materials like alkanes, and addition reaction that takes place over unsaturated starting material like alkenes. Next we go on to another Rx. I can obtain Rx from another Rx. Obviously it should be Rx dash, a different halogen, by two name reaction. One is Finkelstein reaction and the other is Schwarz reaction. So let us go to each topic in details. The first preparation is from alcohols. ROH is alcohol. We can obtain alkyl halides and various alkyl halides by different reagents, like using HCl and anhydrous ZnCl2, we can obtain RCl plus H2O. This particular reagent, HCl and anhydrous ZnCl2, this is known as Lucas reagent, and some of the teachers may pronounce it as Lucas reagent as well. Well, I have the habit of telling Lucas reagent. So Lucas reagent is used to distinguish a 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol. So I have written the order also: 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree alcohol. What it is, why it is so, I am telling you just few seconds later. Using NABR and H2SO4 we can obtain these products. RBR we can obtain along with the other two. Using PX3, either directly PX3 or in presence of red phosphorus and X2, PX3 can be generated in situ. We can obtain Rx. The meaning of the term in situ means in the reaction mixture. So we can give PCl5 to obtain RCl, POCl3 and HCl. We can also give SOCl2, the name is thionyl chloride, in order to obtain alkyl chlorides, along with SO2 and HCl, two gaseous side products for which the yield of RCl is much better.
So thionyl chloride is preferred over all other reagents for obtaining RCl because of the good yield as two gaseous products, side products are obtained. Now, these set of reactions that we have discussed will not be carried over phenol system, not over PHOH, only ROH. Phenol means this benzene ring having OH attached. Now, this oxygen has two lone pair which is in conjugation with the ring, and due to this conjugated system, due to this plus R effect, this carbon-oxygen bond attains partial double bond character, for which the COH bond does not break easily like ROH bond which we are seeing over here. So these reactions are possible over alcohol and not over phenol system. The role of Lucas reagent is to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. It has been seen that 3 degree alcohol to 3 degree alcohol, if you add Lucas reagent, you need not heat also. At room temperature, it will give turbidity. The turbidity is obtained due to the formation of RX, preferably RCl, from ROH. Now, with 2 degree alcohols, secondary alcohols, if I give Lucas reagent, I will need to heat it a bit to obtain the turbidity. So, 2 degree alcohol gives the turbidity after some time by heating. And 1 degree alcohol will not give the turbidity even by heating. So this is how we can distinguish a 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol using Lucas reagent. Now the question arises, why the turbidity? Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 collectively together, they are known as Lucas reagent. Now I can see from ROH, we are getting RX or RCl. Then what is the role of this anhydrous ZnCl2? It plays a very, very important role. Anhydrous ZnCl2 acts as Lewis acid catalyst. It can accept electron pairs. For that reason, it coordinates with the lone pair on the oxygen atom of ROH. We know that in ROH, the oxygen has 2 lone pair. So it coordinates with the lone pair over oxygen, making OH a better leaving group. OH can leave in the form of H2O. Let's see the mechanism and then we'll understand. The mechanism says it follows SN1. So SN1 is substitution nucleophilic unimolecular following first order kinetics. As of now, you just keep in mind that SN1 mechanism involves formation of a carbocation intermediate. So anhydrous ZnCl2, as it is a Lewis acid catalyst, facilitates the formation of the carbocation. This is how it is happening. ROH, alcohol, gets protonated because HCl is used, the H plus is got from HCl. And in presence of ZnCl2, the leaving of this OH as OH2, that means here we can see ROH accepts the H plus and forms ROH2 plus protonated alcohol, which is known as oxonium ion. Protonated alcohol is known as oxonium ion. And this ZnCl2 is facilitating by forming a coordinate bond between oxygen and zinc. So actually the role of ZnCl2 is to facilitate the formation of the carbocation R+. Now finally, in the medium, as HCl is used, Cl- is there, which can act as a nucleophile and it can attack the R+ to form RCl. Now, just as we have seen that the reaction is fastest over 3 degree alcohol, we can now reason out why it is so.
Because from a 3-degree alcohol, we will get a 3-degree carbocation which has maximum stability. Since the stability order of the carbocation is 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree, this is the reactivity order of alcohols in presence of Lucas reagent. From alkanes, we can obtain alkyl halides by free radical substitution reaction, and which is a free radical halogenation. Halogenation is taking place because substitution of H from alkane by halogen following free radical mechanism. That's why it is known as free radical substitution. Reaction is substitution of H by X. So halogenation mechanism is free radical. Now the question arises, how many products we will obtain? Suppose we want to do mono substitution, how many products we can obtain? That depends on how many types of hydrogen atom is present in the compound. That many products will be obtained. Let us see with an example. Suppose we are taking this example, CH3, CH2, CH2, CH3. यहाँ पे हमने कितने कार्बन एटम लिए हैं? 1, 2, 3, 4. सो मेथित प्रोब्यूट. तो ये क्या कंपाउंड है? ये ब्यूटेन है. तो हमने क्या बताया कि जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम है उतना प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलने वाला है. तो पहले तो हमको देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज देयर, कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इज देयर. अब मोनो हैलोजिनेशन के लिए हम इसमें 1 मोल ऑफ X2 अप्लाई करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, सनलाइट और हीट और इरेडिएशन. IRR मतलब इरेडिएशन. तो सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट देंगे तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा. अब देखना है कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे. तो दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं. हम चाहे तो इसको थोड़ा अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें या राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें. ये दोनों आइडेंटिकल है. तो अगर ये ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये भी तो ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन है. उसके बाद में जो टाइप है ये है बी टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बी टाइप है. आप सोच सकते हैं क्यों मैडम ये तो सी टाइप हो सकता है. नहीं जी, ये सी टाइप नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से इसको नंबरिंग करें तो ये है 1, 2, 3, 4. और अगर हम यहां से इसको नंबरिंग करें तो ये होगा 1, 2, 3, 4. तो देखिएगा कि ये दो पोजीशन जो है ये आइडेंटिकल पोजीशन है. 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4. तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप एक H को सब्स्टिट्यूट करके X डाल के फिर कंपेयर करके देखिए कि प्रोडक्ट क्या वही बना या नहीं. चलिए करके देखते हैं. यहां पे अगर A टाइप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ आई यूज ना 1 मोल ऑफ X2, ये 1 मोल है. तो अगर 1 मोल ऑफ X2 आप यूज करेंगे तो ये मोनोहैलोजिनेशन होगा, एक ही H सब्स्टिट्यूट होगा. 3 था, ये 2 बना और X आया ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन. तो CH2, CH2, CH3 ये आपका एक प्रोडक्ट है. और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? हमने अगर बोल दिया कि 2 प्रोडक्ट होगा, आप मान लेंगे? नहीं मानना है, आपको करके देखना है. तो यहां पे जो B टाइप है ना उसको हम रिप्लेस करते हैं. CH3 अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो ये CH2 था, तो एक H रह जाएगा और दूसरे H के जगह पे X. तो ये है CH2, CH3, ये बना आपका सेकेंड प्रोडक्ट. अब करके देखते हैं. ये टाइप रिप्लेस करके क्या होगा? CH3, CH2, CH 2 था, एक रिप्लेस करके X, CH3. अब आप ये और ये कंपेयर करके देखिए. तो इसका नंबरिंग अगर करते हैं तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से करना होगा क्योंकि हैलोजन एटम यहां पे अटैच्ड है. तो तब इसका होगा 1, 2, 3, 4.
2 हैलो मेथित प्रोब्यूट, तो ब्यूटेन। और इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड से करने से आपका ये हैलोजन जल्दी मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये भी बना 2 हैलो ब्यूटेन। तो ये दो आइडेंटिकल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन जहां हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करने वाले हैं। तो क्या चेक करना है, पहले देखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। ये एक टाइप है, दिस इज वन टाइप, दिस इज से ए टाइप। तो ये भी ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। उसको चेक करने के लिए मैं हमेशा नंबरिंग प्रोसेस ही मैं बोलती हूं, दैट इज इजियर। यहां से नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3, तो ये 1 पोजीशन होता है और ये ब्रांचिंग आएगा। तो यहां से नंबरिंग करने से भी ये 1 2 3, तो ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। सो दोनों हाइड्रोजन जो है दे आर आइडेंटिकल। सो अगर ये ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, ये बी टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये सी टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। 3 टाइप। फिर मैं वही बोलूंगी कि अगर आपको डाउट है तो आप जितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये होगा मोनो हैलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन को हटा के X आने वाला है। तो अगर आपको लगता है हर एक पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन हटा के हम देखेंगे तो वो आप कर सकते हैं, भले ही क्रॉस चेक के लिए। सो लेट अस सी। ए वाला हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CH2, यहाँ पे X, CH, ये है CH3 और ये है CH3। तो दिस इज 1। तो मैंने शुरुआत में जो बताया है कि एज मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मैनी प्रोडक्ट्स। जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है। सो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड। रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम ए टाइप वी गॉट दिस। फिर हाइड्रोजन रिमूव करो बी टाइप से, उसके जगह पे हैलोजन डालो तो जो मिलेगा वो है दूसरे टाइप या दूसरा प्रोडक्ट। सो दिस इज योर प्रोडक्ट 2। फिर थर्ड प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, सी टाइप ऑफ हाइड्रोजन को हटाओगे तो CH, CH3, ये CH2 और यहां पे एक हैलोजन डालो तो ये बन गया आपका थर्ड प्रोडक्ट। सो यू गॉट 3 प्रोडक्ट्स हियर। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम हैविंग अ डबल बॉन्ड। तो पहले हो सकता है बाय एडिशन ऑफ HX, जो मैंने बताया है कि हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल, अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, जब भी हम HX को ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, HX क्या है, पोलर है, क्योंकि X जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो HX है पोलर एडेंडम। एडेंडम मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम में, तो HX है पोलर एडेंडम। तो जब भी हम पोलर एडेंडम को ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम में, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिसकी डबल बॉन्ड की दोनों साइड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, सेम नहीं है, वैसे सिस्टम है अनसिमेट्रिकल सिस्टम। सो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। ऐसे सिस्टम में जब हम HX एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सैचुरेटेड कंपाउंड विथ X, जो नेगेटिव पार्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड वहां पे अटैच होगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये CH डबल बॉन्डेड CH2 है, तो ये 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। जहां पे कम हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये कार्बन हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड, वहां पे हैलोजन अटैच होगा और दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन अटैच होगा। तो क्या बनेगा, सैचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड जाके सिंगल बॉन्ड बनेगा,
तो CH3, CHX और सिंगल बॉन्ड एक एडिशन के लिए, और CH2 था हाइड्रोजन लेके CH3 बनेगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा इसीलिए मेजर कहलाता है। माइनर होगा यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हैलोजन अटैच होगा, तो जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट है। तो ये है आपका HX एडिशन। मैकेनिज्म बाद में बताते हैं। एडिशन ऑफ X2 हैलोजिनेशन है। ब्रोमीन इन CCl4 कॉमन एग्जाम्पल है, इसको हम यूज भी करते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। करने से क्या होगा, ये C डबल बॉन्डेड C सिस्टम्स अनसैचुरेटेड सिस्टम में जब भी आप ब्रोमीन एडिशन करेंगे तो 1-2 एडिशन होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम में होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जो दो है एक एक करके Br अटैच होगा, तो ये फॉर्म होगा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्यों, एडजेसेंट कार्बन एटम में हैलोजन एटम अटैच होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये Br जो है ये आप एंटी पोजीशन में ही रखें, मैकेनिज्म कुछ रिलेटेड है, तो ये Br जो है ये विसिनल मैनर में ऐड होता है और ये बनता है आपका प्रोडक्ट विसिनल डाइहैलाइड। ये है मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन जो मैंने बताया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब भी आप HX एडिशन करेंगे, क्योंकि HX है यहाँ पे H प्लस मीडियम में होगा जहां से प्रोटोनेशन होगा, तो ये पहला स्टेप है स्लो RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो पाई बॉन्ड है ये दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है। ए मैनर में शिफ्ट हो सकता है, अगर हुआ तो पाई क्लाउड CH2 के ऊपर जाने से H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि ये दिख रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और अगर बी मैनर में पाई शिफ्ट हुआ तो कार्बन नंबर 2 में ये पाई क्लाउड जाने से H प्लस कार्बन नंबर 2 में अटैच होगा, कार्बोकैटायन बनेगा कार्बन नंबर 1 पे ये। तो दिस इज अ 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन से हमें ये पता है कि ये जो है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो सेकेंड स्टेप जब बनता है, सेकेंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल वह है जिसके ऊपर लोन पेयर हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इसीलिए ये सिंबल है न्यूक्लियोफाइल का। अब X माइनस नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल बना, तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर में, तो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां पे अटैक नहीं करेगा, अटैक तो दोनों साइड में होगा ना। तो अगर 2 डिग्री कैटायन में अटैक होता है तो जो बनेगा वो ये है, और 1 डिग्री कैटायन में जब अटैक होगा तो ये बनेगा ना। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में से जो मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, उससे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है मेजर प्रोडक्ट। तो अगर इस स्टेप में हमें कहीं भी शिफ्ट करने का चांसेस मिले, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, जहां से ना स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन ज्यादा मिले, 2 डिग्री से 3 डिग्री मिले या 1 डिग्री से 2 डिग्री मिले, 1 डिग्री से 3 डिग्री मिले, ये ज्यादा होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री मिलने में। तो अगर कभी भी ये मौका आपको मिलता है बाय शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड और मे बी शिफ्ट ऑफ मिथाइल कि आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है, तो वो जो कार्बोकैटायन बनेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। जो देखना है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, खैराश इफेक्ट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये एग्जाम्पल है अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। HBr के प्रेजेंस में और परऑक्साइड होना जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड HBr एडिशन करेंगे तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पे इस टाइम हैलोजन नहीं जाएगा, जाएगा हाइड्रोजन।
और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये कार्बन यहां पे जाने वाला है Br नेगेटिव पार्ट। तो ये Br जो है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड में जब आया तो ये है मेजर प्रोडक्ट, और ये जब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आया तो ये बना माइनर प्रोडक्ट। ये मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बट एक चीज जो है आपको ध्यान देना है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl या HI में ये पॉसिबल नहीं है। क्लास 11 के सिलेबस में ये था। HCl के केस में क्या है, H और Cl का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से आपको फ्री रेडिकल मिलना उतना आसान नहीं है। और HI में क्या था कि बॉन्ड एंथैल्पी लो तो है, लेकिन I डॉट जब बनता है ये तुरंत कंबाइन करके दे देता है आपको I2। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैन बी फिंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करते हैं और श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड्स को ऑब्टेन करते हैं। तो ये दोनों जो है ये कोई क्लोरो कंपाउंड या ब्रोमो कंपाउंड से फ्लूरो या आयोडो मिल सकता है। फिंकलस्टाइन में RCl या RBr लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन मीडियम अगर आप लेते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा RI। इसीलिए तो नाम है हैलोजन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो भी हैलोजन है, जो प्रोडक्ट आपका मिलता है आयोडो वो भी हैलोजन है। ऐसा लगता है कि दोनों में एक्सचेंज हुआ है, तो ये RI प्लस NaX जो है वो बनता है। NaX हो सकता है सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, जो कि ड्राई एसीटोन मीडियम में प्रेसिपिटेट आउट करता है, ताकि आपका RI का जो यील्ड है वो बेटर हो। इसीलिए ड्राई एसीटोन मीडियम लिया जाता है ताकि RX को प्रेसिपिटेट आउट कर पाए और उसको रिमूव कर पाए। RX अगर RCl RBr लेते हैं तो एज पर श्वार्ट्ज रिएक्शन आपको फ्लूरो कंपाउंड्स मिलने वाले हैं, मतलब एल्काइल फ्लोराइड्स। तो यू कैन यूज AgF ले सकते हैं, Ag2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं या SbF3 ले सकते हैं। एंटीमनी फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड है ये, एंड यू हैव टू हीट इट एंड यू विल गेट RF। तो जो आपको याद रखने में सुविधा हो आप वो रिएजेंट को आप याद रखिए। एंड अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस व्हेन RCl इज ट्रीटेड विद Ag2F2, तब आपको पता होना है कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में ये सारे कैटलिस्ट लगते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स में पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय AES। अब ये AES क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूशन? यूजिंग एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला एग्जाम्पल है बेंजीन से एरिल हैलाइड्स या हैलोएरीन प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ X2 आयरन डार्क कंडीशन। आयरन के जगह पे आप एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं। ये एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये एक्चुअली है लुईस एसिड कैटलिस्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आयरन जो है ये लेस देन ऑक्टेट है FeCl3 में, एल्यूमिनियम जो है वो भी लेस देन ऑक्टेट है, इसीलिए इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो just because it acts as Lewis acid catalyst, it helps in the generation of the electrophile, और वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे X प्लस है। कैसे? मानिए यहाँ पे X2 है, X2 में इट्स नॉट अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 what happens? The electron pair is taken by aluminium, जिसके वजह से ये X फॉर्म करता है X प्लस, जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये AlCl3 बन जाता है AlCl4 माइनस।
तो ये हमने क्लास 11 में ऑलरेडी वी हैव सीन इट, ये थोड़ा रिकॉल कर दिया। तो ये है रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, क्या है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। और लुईस एसिड कैटलिस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, X+ चाहिए। तो अगर टोलुइन लेते हैं, ये तो बेंजीन में कहीं भी X आके बैठ गया तो ये प्रोडक्ट जो हुआ वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हुआ। तो अगर ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, टोलुइन है, वहां पे X2 Fe डार्क कंडीशन आप देते हैं, तब क्या होगा, तब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन, क्योंकि ये CH3 जो अटैच्ड है इसका डायरेक्शनल नेचर है ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस आई इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग या डायरेक्टिंग है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा ये ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में अटैच होगा टू गिव ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये दोनों में से पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू मोर सिमेट्री और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग इसमें कम है, डिस्टेंस CH3 और X के बीच जो है इसमें ज्यादा है, इसीलिए क्राउडिंग कम है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स फ्रॉम एमीन। कैसा एमीन? एमीन जो प्राइमरी है 1 डिग्री है, एमीन जो एरोमेटिक है। तो ये जो है एनिलीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ये एनिलीन जो स्टार्टिंग मटेरियल आप लेंगे, इसको आपको कन्वर्ट करना है टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड by diazotization reaction. Aqueous sodium nitrite NaNO2 dilute HCl के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन में आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड और कमाल का इंटरमीडिएट है, क्योंकि इस इंटरमीडिएट से आपको लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं ना कहीं पाथवे से मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हम हैलोएरीन्स का देखते हैं। ये जो स्टेबल रेजोनेंस स्टेबिलाइज इंटरमीडिएट हमको मिला एनिलीन से बाय द मेथड ऑफ डाइएजोटाइजेशन, वहां से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तैयार करने का तरीका सैनमायर रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन है। ये दो नेम रिएक्शन है। सैनमायर रिएक्शन ये है जहां Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX अगर आप लेंगे, X क्या है, क्लोरो या ब्रोमो है, तो आपको मिलने वाला है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो इसका नाम है सैनमायर रिएक्शन। इसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। अगर आप Cu इन प्रेजेंस ऑफ HX, HCl या HBr ले लेते हैं तो आपको जो मिलेगा वो है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। इसमें N2H साइड प्रोडक्ट मिलता है सैनमायर में, गैटरमैन में N2 + CuX। आप ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्लेन एंड सिंपल Ki डाल के आप आयोडोबेंजीन भी तैयार कर सकते हैं। KCl एंड N2 मिलने वाला है एज द साइड प्रोडक्ट। इसमें अगर आप HbF4 फ्लूरोबोरिक एसिड और हीट करेंगे, फ्लूरोबोरिक एसिड डाल के हीट करेंगे, तो आपको मिलने वाला है फ्लूरोबेंजीन अलोंग विद BF3 एंड N2। इसका नाम है बॉल्स-शीमैन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना के वहां से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यहां तक कि फ्लूरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी मच क्लियर। ध्यान से सुनिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुनिए, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।